Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy and doing study at home. So, student, I am teaching you chapter number 14, means of transport. So, all of you open page number 73 of your book. ठीक है, open page number 73 of your book and take one rough copy and one pencil with you so that you can note down the important points from the board also. And if there is any confusion, then you can note down your doubts and you can ask your doubts in online classes. Okay, student, before starting, let do little recapitulation what we have done in our previous video. So, student, we discuss what are the means of a transport. So, what is means of transport, student? The different types of a vehicles which we use to move from one place to another, or which you can say we use to travel, that are known as means of transport. And student, when we are talking about the means of transport, then means of transport is also divided into three parts. Okay, so see, means of transport, it is divided into three parts: land transport, okay student, when we are talking about means of transport, then this means of transport is also divided into three parts, that is land transport, air transport and water transport. Okay, so there are different means of transport which are used for this purpose. And means of transport is, it is divided into three parts, that is a land transport, your air transport and what, your water transport. Is it clear? Now student, when we are talking about the land transport, so it is also divided into two parts. That, for example, the vehicles which are moving on the road from one place to another, and some, and train, what about the train? Train moves on the track. जैसे इतने व्हीकल्स हैं स्टूडेंट, कार है, साइकिल, ऑटो रिक्शा, वैन, बसेस. सो दीज ऑल व्हीकल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन रोड, क्योंकि इन सारे व्हीकल्स में व्हील्स लगे हुए हैं सब. ठीक है, क्योंकि इन्वेंशन ऑफ द व्हील, पहिए की खोज ने, मैंने इससे प्रीवियस चैप्टर में आपको बताया था ना, इट चेंज द लाइफ ऑफ द ह्यूमंस. ठीक है, सो स्टूडेंट, so land transport, some of the vehicles with maximum vehicles which are moving on the road. ठीक है, but some, if we talk about trains, railways, अगर हम railways की बात करें तो train moves on the tracks. Okay, trains, if we talk about railways, then the train move on tracks. Then the
trains move on tracks when we are talking about the railways. And another important thing is that the most commonly used, सबसे ज्यादा, जैसे बेटा लैंड ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट है, वाटर, which is the most, which is the transport which is commonly most used by the people. ठीक है, सो ये डिफरेंट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है, लैंड भी है, वाटर भी है, एयर ट्रांसपोर्ट. तो क्वेश्चन इज व्हाट, विच मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट जो मैक्सिमम हम यूज करते हैं. ठीक है, मैक्सिमम हम लोग यूज करते हैं, दैट इज स्टूडेंट दिस वन, लैंड ट्रांसपोर्ट. सबसे ज्यादा हम लोग कौन सा यूज करते हैं बेटा, वी यूज द लैंड ट्रांसपोर्ट. यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज सी लैंड ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव टू गो इन द नेबरहुड प्लेसेस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आपके अगल बगल जो जहां आप रहते हो, जिस लोकेलिटी में आप रहते हो, तो वहां के अगल बगल की प्लेसेस पे अगर आपको जाना है तो मैक्सिमम हम क्या यूज करते हैं, वी यूज लैंड ट्रांसपोर्ट. हम क्या यूज करेंगे, लैंड ट्रांसपोर्ट वी यूज. इसीलिए मैंने बोला कि ये तीनों ट्रांसपोर्ट्स हैं, लैंड, एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट में सबसे ज्यादा यूज कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं हम, that is the land transport. For example, if you are going to the market to buy the things, then you will use a land transport. You will go with a cycle, maybe you have your own scooter or motorcycle, bike, or you can go with the car also. Is it clear? So all these are mean of a land transport. All these are mean of land transport. Okay, and लैंड ट्रांसपोर्ट की ये बात कर ली थी. उसके बाद व्हेन आई एम गिविंग यू एक्सप्लेनेशन ऑफ द रेलवेज, सो ट्रेन रन्स ऑन द ट्रैक. ट्रेन किस पे मूव करती हैं या रन करती हैं, ट्रैक्स पे रन करती हैं ट्रेन. ओके, एंड आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंजन्स, दैट इज ए स्टीम इंजन, इलेक्ट्रिक स्टीम इंजन, डीजल इंजन एंड इलेक्ट्रिक इंजन. नाउ स्टीम इंजन इज नॉट इन वर्किंग. अब स्टीम इंजन वर्किंग में नहीं है क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है उससे, एयर पॉल्यूशन. ठीक है, अब स्टीम इंजन बंद हो गए हैं. ठीक है, पहले सबसे स्टार्टिंग में जो इंजन चले थे वो स्टीम इंजन थे. नाउ दे आर नॉट इन वर्किंग में नहीं है. अब क्या है, आफ्टर दैट डीजल इंजन एंड इलेक्ट्रिक इंजन. ओके, सो एज ए फ्यूल इन अ डीजल इंजन दे आर यूजिंग द डीजल. ठीक है, एंड इन इलेक्ट्रिक इंजन दे आर यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी से बल्ब चलते हैं, पंखे चलते हैं, टीवी चलती है, सारी बहुत सी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जितने भी हैं सारे वर्क इलेक्ट्रिसिटी से करते हैं. इसी तरह इलेक्ट्रिक इंजन में क्या है, ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी द इंजन्स रन. ओके, अब आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया था ट्रेन्स. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रेलवेज, तो इट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. वन ट्रेन इज नोन एज अ पैसेंजर ट्रेन. ठीक है, क्योंकि इसकी लैंड ट्रांसपोर्ट की हमने डिस्कशन काफी कर ली है. लैंड ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला ट्रांसपोर्ट क्या है, लैंड ट्रांसपोर्ट. आप लोग छोटे बच्चे हो, डेली यू गो टू स्कूल, इफ द स्कूल इज वेरी क्लोज तो आप वॉकिंग भी जा सकते हो. बट इफ इट इज नॉट क्लोज, देन मे बी बाई योर पेरेंट्स ड्रॉप यू with their bike or motorcycle, or you go to school by van, or you can also go to school by bus, auto rickshaw or rickshaw. So there are many things. Okay, and land transport हो गया. And land transport after that, the most important thing is that maximum जो land transport में हमने बात की थी, highways, these connect the major cities. ये शहरों को, एक शहर को दूसरे शहरों से जोड़ते हैं. देखो बहुत इंपॉर्टेंट है land transport. Is it clear? Because these network of a roads, ठीक है, if there is a good network of a roads where you are living, it means you have maximum facility. जहां आप रह रहे हो, अगर वहां रोड्स बहुत हैं, गुड नेटवर्क ऑफ ए रोड्स है, कहीं भी आने जाने के लिए बहुत से रोड है, रास्ते हैं, तो इसका मतलब यू आर गेटिंग गुड फैसिलिटीज देयर. क्योंकि many things in the morning they come on these trucks, by truck or small
छोटी गाड़ियां भी बहुत आ गई हैं लोड कैरी करने के लिए. सो फॉर एग्जाम्पल फ्रेश फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, मिल्क है, ब्रेड है. सो these are very important. Okay, and after that railways, passenger one is known as passenger train, one is known as passenger train, and another is known as goods train. So what happen here in a passenger train, ये बताया था कल नहीं. पैसेंजर ट्रेन, ओके, इट कैरी द पीपल, मैनी पीपल एट ए टाइम टू अ लॉन्ग डिस्टेंस. ठीक है, इसके क्या है एडवांटेज है ये. एक क्या है, इट इज वेरी कंफर्टेबल. ठीक है, आप बैठना है बैठ के जा सकते हो. इफ यू वांट टू स्लीप यू कैन स्लीप. सो इट इज वेरी कंफर्टेबल. एक तो ये इसकी एडवांटेज हो गई पैसेंजर ट्रेन की. अनदर एडवांटेज, इट कैरी मैनी पीपल एट द सेम टाइम टू अ लॉन्ग डिस्टेंस. ठीक है, बहुत से लोगों को एक संग ले जा सकती है ट्रेन आपकी. ठीक है, और गुड्स ट्रेन क्या होती है बेटा, और एक इंपॉर्टेंट ये भी है कि इट कैरी पीपल्स आल्सो एंड देयर लगेज आल्सो, बिकॉज व्हेन वी गो समवेयर वी कैरी आवर क्लोथ्स. हम अपने क्लोथ्स कपड़े ये सब लेके जाते हैं ना अपनी जरूरत की कुछ. अब पूरा घर नहीं उठा के ले जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें होती हैं जो विच आर जो इंपॉर्टेंट होती हैं उन्हें हम, जैसे क्लोथ्स हैं भाई, आप एक ही क्लोथ्स पहन के तो 10 दिन कहीं नहीं रहोगे. you must change your clothes also. So it carry passenger also and their luggage also. Good train it don't carry any passenger, जो कोई पैसेंजर को कैरी नहीं करती है. आपकी कौन सी ट्रेन है बेटा, गुड ट्रेन. ओके, इट कैरी द ईटेबल आइटम्स. ठीक है, खाने वाली चीजें हैं, जैसे उन चीजों को ये एक जगह से, जैसे आपका ईटेबल सीड्स में आ गया, आपका राइस आ गया, व्हीट आ गई, पल्सेस आ गए, कोल है, oil है. So these are the example it carry from one part of the country to another part of the country. Is it clear? So ये हो गया आपका गुड ट्रेन्स का हो गया. नाउ सी स्टूडेंट, ट्रेन वाला आप लोग को मैंने ऑलरेडी पूरा एक, और फिर उसके बाद देयर आर सम बिग सिटीज जिसको हम लोग मेट्रो सिटीज बोलते हैं. वहां पे क्या अंडरग्राउंड ट्रेन चलती हैं जिन्हें हमें मेट्रो ट्रेन बोलते हैं. ये मेट्रो ट्रेन इट डज नॉट कवर अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस. जैसे दिल्ली में मेट्रो ट्रेन है तो वो दिल्ली के ही अंदर चलती हैं. ठीक है, उसके बाहर नहीं जाती हैं. जितने एरिया में दिल्ली का एरिया उसी में चलती हैं ये ट्रेनें. ओके, सो these cover not, these trains do not cover a long distance and these train run with very high speed, बहुत तेज स्पीड से चलती हैं. and you will lot, so it save the time of the passenger also. ठीक है, क्योंकि जो मेट्रो सिटीज होती हैं इसमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है. ठीक है, सो दैट इज द रीजन. इतनी ऐसा नहीं है मेट्रोस चलती हैं तो बसेस खाली होंगी, इतनी पॉपुलेशन होती है बिग सिटीज में कि many buses are also peoples are traveling with the bus also, auto also, rickshaw also, and even they going to their office with these metro trains also, because the population in big city is very much population in the big cities. Okay, so ये हो गया आपका. Now the very important point, that is, did you know first passenger train in India? ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. when the first train run in India? So it run in 1853, and from where to where it is asked, then the answer is Bombay and Thane. ठीक है, so now let's start with the air transport. Now we will start with the air transport. See, the quickest way to travel is by air transport. Okay, aeroplanes can go very fast and carry hundred of passengers at one time, but traveling by air is costly. ठीक है, today we have air services linking all the important cities in the country and in the world. Beside aeroplanes we have hot air balloons also, helicopter and airships also. So see student, when we are talking about the air transport, so air it is the fastest mean of transport. ठीक है, बहुत कम समय में आप कहीं भी जा सकते हो. ये फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है, दैट इज एयर transport. Now when we are talking about the air transport,
सो ये इसके एडवांटेज है स्टूडेंट, दिस इज द एडवांटेज, इट इज द फास्टेस्ट या क्विकेस्ट, जो भी लिखोगे ठीक होगा बेटा, इट इज द फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांस, ओके, इट इज द फास्टेस्ट मीन ऑफ ए ट्रांसपोर्ट है। इज इट क्लियर? एयर ट्रांसपोर्ट ये इसके एडवांटेज है, इट इज द फास्टेस्ट मीन ऑफ ए ट्रांसपोर्ट है। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू गो टू दिल्ली बाय एरोप्लेन, तो लेस देन 1 hour इट टेक टू रिच दिल्ली, सो एंड बाय ट्रेन इफ you go it will take 11 to 12 hours, okay, but now there is a new train that is Vande Bharat hai, so it that train is taking less hour, I think 8 hours the train is taking, okay, बट फिर भी आप एरोप्लेन से देखो तो एरोप्लेन से तो आप लेस देन 1 hour में पहुंच जा रहे हो। तो दैट इज द रीजन एयर ट्रांसपोर्ट इट इज द फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। और इसकी डिसएडवांटेज क्या है? इट इज अ वेरी कॉस्टली, एक्सपेंसिव, ठीक है, बहुत महंगा है, हर कोई नहीं जा सकता जहाज में, ठीक है बेटा, हर कोई नहीं जा सकता। इसकी एडवांटेज तो ये है कि इट इज द क्विकेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, और एरोप्लेन कैन गो वेरी फास्ट एंड कैरी 100 ऑफ पैसेंजर्स, 100 एंड अबव 100 पैसेंजर इतने ही एक एरोप्लेन लेके जाता है, ठीक है, बट इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। जितने भी मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है, लैंड ट्रांसपोर्ट ले लो आप, वाटर ट्रांसपोर्ट ले लो, एयर ट्रांसपोर्ट ले लो, उसमें सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव कौन है आपका? सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव कोई है बेटा, तो दैट इज एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव एयर ट्रांसपोर्ट है, ठीक। अब ये हो गया। अब देखो व्हाट टुडे वी हैव एयर सर्विसेज linking all the important city now in present time, if you we see that the aeroplanes are moving in all the city, not only in India, outside the India also, in other countries, ठीक है। नेटवर्क इतना अच्छा है एयर ट्रांसपोर्ट्स का कि फॉर यू कैन गो इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री with the air transport, okay, you can go in any part of the country also, or in other countries also, if you want to go you can go, but only drawback is that it is very expensive, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है, हर कोई इतना खर्चा नहीं कर सकता, इसीलिए रेलवेज सबसे बेस्ट होता है। इज इट क्लियर? क्योंकि रेलवेज में देखो, अब डिटेल में क्या है, रेलवेज में देखो डिफरेंट है, दोज पीपल हु डोंट हैव मच मनी दे टेक जनरल टिकट्स, ठीक है, सो जनरल टिकट क्या है, बहुत कम पैसे लगते हैं उसमें, ठीक है, सो दीज टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज आर इन रेलवेज। रेलवेज में क्या है, लेस एक्सपेंसिव है, पैसे वी कवर अ लॉन्ग डिस्टेंस विद स्पेंडिंग लेस मनी, बहुत कम मनी स्पेंड करके भी हम लॉन्ग डिस्टेंस प्लेसेस पे जा सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकते हैं विद द रेलवेज। और एयर ट्रांसपोर्ट का तुम लोग को बता दिया बेटा, ये फास्टेस्ट मीन ऑफ ए ट्रांसपोर्ट है। और एयर ट्रांसपोर्ट क्या है, बस इसकी ड्रॉबैक यही है कि नंबर ऑफ पैसेंजर्स भी 100 एंड 100 अबव लेके जाता है, एंड ओनली व्हाट इज द डिसएडवांटेज ये है कि इट इज वेरी एक्सपेंसिव, ये क्या है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो कभी कभी बच्चे क्लास में बोलते हैं कि सर ये डेंजरस भी बहुत है, बच्चे कभी क्लास में पूछ लेते हैं कि सर सबसे ज्यादा डेंजरस तो एयर ट्रांसपोर्ट ही हुआ, बाई चांस जहाज गड़बड़ हो गया, कुछ हो गया तो इतनी हाइट पे उड़ता है, कोई नहीं बचता है। तो बेटा अगर इस ढंग से सोचोगे तो अभी आप अगर ये सब देखते होगे, क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर देखोगे, तो न्यूज़पेपर में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स जो होते हैं आपके लैंड ट्रांसपोर्ट में होते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट जो एयर ट्रांसपोर्ट में एरोप्लेन क्रैश कर गया, एक्सीडेंट हो गया, ये सब बहुत कम सुनने को मिलता है, ठीक है। और सेम थिंग इन वाटर ट्रांसपोर्ट ऑल्सो, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो लैंड ट्रांसपोर्ट में ही होते हैं, ठीक है। सो इसलिए
ये कहना कि एरोप्लेन सबसे डेंजरस है, ऐसा नहीं है कि एयर ट्रांसपोर्ट सबसे डेंजरस है। अगर आप लोग इफ यू सी द इफ यू रीड द न्यूज़पेपर, यू विल फाइंड लॉट ऑफ, डेली देखोगे न्यूज़पेपर में खबर लगी होती है, डेली यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, डेली यू विल सी दिस थिंग इन द न्यूज़पेपर। ऐसी थिंग्स तुम एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट में नहीं देखोगे उतनी। ठीक है, तो भाई ट्रांसपोर्ट तो सब आपके फैसिलिटीज हैं, आपके लिए ही हैं, लेकिन हम रूल और रेगुलेशन नहीं फॉलो करते हैं, तब एक्सीडेंट्स होते हैं। एक चैप्टर आप लोग को सेफ्टी रूल्स एट रोड पढ़ाया था ना बेटा, कि अगर हम रोड पे हैं तो कैसे सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। व्हेन वी आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड मेड traffic rules we are not following, then due to this there are lot of accidents also। अब देखो सेकंड क्या है, एयर ट्रांसपोर्ट का बहुत बढ़िया नेटवर्क है। इन एनी सिटी, इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री यू कैन गो विथ दिस सर्विस, दैट इज एयर ट्रांसपोर्ट। ओके, एंड इफ यू वांट टू गो इन अनदर कंट्री आल्सो, यू कैन go with this service, that is air transport। okay, it save time, this facility save time, but you have to spend more money, it save time। ठीक है, आप आपको कहीं काम पड़ गया, दिल्ली में काम पड़ जाता है, तो ये आप 1 आवर में पहुंच जाते हो। आप हो सकता है सुबह जाओगे अपना काम करके, जो लोग बहुत से बिजनेस जो लोग करते हैं वो ऐसा करते हैं, मॉर्निंग में निकल गए, उसके बाद आफ्टरनून या नाइट की फ्लाइट से वापस आ गए विद इन ए 1 डे। ठीक है, सो एयर ट्रांसपोर्ट इज आल्सो अ वेरी गुड फैसिलिटी फॉर अस। ओके, नाउ सी स्टूडेंट, बिसाइड एरोप्लेन वी हैव हॉट एयर बैलून्स, हॉट एयर बैलून्स भी हैं। ठीक है, इनसे भी ट्रेवल किया जा सकता है। ठीक, और हेलीकॉप्टर्स तो देखो ये सबसे कम हाइट में भी उड़ने वाले होते हैं हेलीकॉप्टर्स। इज इट क्लियर, इजिली कहीं भी आप इसको लैंड भी करा सकते हो, उतना ज़्यादा वो नहीं होता है। एरोप्लेन्स के लिए क्या है, एरोप्लेन्स के लिए भाई पूरा एयरपोर्ट चाहिए, एरोप्लेन्स को आप कहीं भी लैंड नहीं करा सकते हो, प्रॉपर एक एयरपोर्ट होता है। क्योंकि ठीक है, जहाज डायरेक्ट नहीं, जैसे इट्स नॉट लाइक बर्ड्स कि दे आर सिटिंग ऑन द ट्री एंड दे स्टार्ट फ्लाइंग। ठीक है, रनवे पे पहले बहुत स्पीड में एरोप्लेन रन करता है एंड आफ्टर दैट इट टेक ऑफ। ठीक है, उसके बाद वो टेक ऑफ करता है, उड़ता है। ऐसा नहीं, इट नॉट लाइक ए बर्ड्स कि जहां से बैठे हैं वहीं से उड़ गए। उसके लिए उसे रनवे पे पहले बड़े हाई स्पीड से रन कराना पड़ता है। इज इट क्लियर, तो दैट इज द रीजन स्टूडेंट। सो सबसे ज्यादा चीपेस्ट जो है ना वो तुम्हारा वाटर ट्रांसपोर्ट है। अभी पढ़ाएंगे वाटर ट्रांसपोर्ट, वो सबसे चीपेस्ट। ठीक है, क्योंकि वाटर तो तुम खरीदने कहीं नहीं जा रहे हो, आपको पता है कि अर्थ में मोर देन 70% क्या है, वाटर ही है। और ये वाटर किस में, सी, ओशन, रिवर्स, ये सब में। तो अब ये वाटर देखो देखो लैंड ट्रांसपोर्ट है, लैंड ट्रांसपोर्ट में भी आपको रोड मेंटेन करने पड़ रहे हैं, रोड्स पे भी बहुत मनी लगती है। समझ में आ रहा है बेटा, रोड्स ऐसे तो बन नहीं जाते हैं, उनके कंस्ट्रक्शन में भी वी आर दैट लॉट ऑफ मनी इसमें भी यूज होती है। लैंड ट्रांसपोर्ट बनाने में भी बहुत पैसा लगता है, एयर ट्रांसपोर्ट में भी बहुत पैसा लगता है। ठीक है, अब वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए देखो वाटर में शिप जा रही है, तो इसके लिए वाटर खरीद के नहीं लाना पड़ता है या वाटर बनाना नहीं पड़ता है, वो ऑलरेडी है नेचर में प्रेजेंट। ठीक है, वो ऑलरेडी नेचर में प्रेजेंट है वाटर, इसे हमें किसी से खरीदने नहीं जाना है। ठीक है, तो इसलिए वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे चीपेस्ट भी है। ठीक है, और लैंड ट्रांसपोर्ट में रोड्स बनाने हैं, उनके कंस्ट्रक्शन करनी है, उसके लिए मनी चाहिए। एयर ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, इट इज ट्रू दैट एरोप्लेन्स फ्लाई इन द एयर, लेकिन जब वो लैंड करता है, टेक ओवर करता है, तो उसका बहुत बड़ी जगह होती है एयरपोर्ट, जहाँ पे जहाज जहाँ से उड़ता है और जहाँ पे वो लैंड करता है। ठीक है, बहुत बड़ा रनवे होता है वो भी। इज इट क्लियर, सो दैट इज द रीजन। अब ये हो गया। अब देखो हेलीकॉप्टर्स हैं, मैक्सिमम बच्चों ने हेलीकॉप्टर देखे होंगे। इज इट क्लियर, और
हेलीकॉप्टर क्या है, सबसे बेस्ट है, कम हाइट पे भी उड़ सकता है और आप इसे लैंड भी करा सकते हो। ठीक है, इसके लिए कोई बहुत बड़ा रनवे या ये नहीं चाहिए होता है जैसे एरोप्लेन्स में होता है। ठीक है, और हाँ, हेलीकॉप्टर है जहाँ है वहीं से उड़ना स्टार्ट कर देता है, इसको रन नहीं करना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटा वाटर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट आपका आ गया, अब नाउ वी विल स्टार्ट विद दिस वाटर ट्रांसपोर्ट। अब हम किससे स्टार्ट करेंगे बेटा, वाटर ट्रांसपोर्ट से। देखो, द ओल्डेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट इज वाटर ट्रांसपोर्ट। सबसे ओल्डेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट जो रहा है वो क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट ही है। ठीक है, जैसे बहुत से, अब दूसरी क्लासेस में जाओगे, अभी हायर क्लासेस में जाओगे तब डिटेल स्टडी में ज्योग्राफी पढ़ोगे, तब तुम लोग देखोगे मैनी पीपल्स फ्रॉम अदर कंट्री हाउ दे कम टू आवर कंट्री। तो दिस वाटर ट्रांसपोर्ट से ही आए थे वो। ठीक है, मतलब अब वाटर ही वाटर था, तो वाटर ट्रांसपोर्ट से ही पता चला कि और भी बहुत से देश हैं। ठीक है, सो मैनी पीपल्स फ्रॉम अदर कंट्री दे कम विद द वाटर ट्रांसपोर्ट। इसी वाटर ट्रांसपोर्ट से ही वो लोग डिफरेंट डिफरेंट कंट्री की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, अब देखो, ओल्डेस्ट मीन ऑफ ए ट्रांसपोर्ट इज ए वाटर ट्रांसपोर्ट। पीपल यूज टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूजिंग लॉग्स स्मॉल बोट्स ऑन वाटर। ठीक है, पहले जो वुड होती है ना, वुड क्या है, फ्लोट करती है वाटर में, डूबती नहीं है। तो पहले स्टार्टिंग में क्या किया, ह्यूमन बींग से कुछ वुड्स को आपस में बांध दिया। ठीक है, रोप से, उस समय अभी रोप नहीं होती थी तो रोप ये सब से किसी से बांध दिया, और इस ढंग से जब उन्हें बोट भी नहीं बनाने आती थी, ठीक है, तो वुड्स ऑफ लॉग्स को आपस में टाइटली उन्होंने बांध दिया, और इस ढंग से वो वाटर, जैसे मान लो वो कहीं ऐसा हो जहां वो रहते हो वहां रिवर हो, एंड दे हाउ दे विल क्रॉस द रिवर। सो क्योंकि मैंने आपको बोला ना, ओल्ड टाइम में बहुत सी चीजें दे आर लर्निंग बाय डूइंग, उन्हें कोई बता नहीं रहा था, दे डोंट हैव एनी बुक कि उससे पढ़ पढ़ के वो कर ले रहे थे। वो जो भी लर्न कर रहे थे वो कुछ ना कुछ कर रहे थे। ठीक है, बाई चांस कभी कोई, हो सकता है कोई ट्री गिर गई हो वाटर में, तो उन्होंने देखा होगा कि इतनी हैवी वेटेड ट्री है, वाटर में गिर गई तो ये फ्लोट कर रही है, डूब नहीं रही है। उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की होगी, जैसे उन्होंने व्हील बनाने में ऑब्जर्व किया कि राउंड ऑब्जेक्ट जो है, जो राउंड जिनकी शेप होती है, दे कैन इजिली मूव ऑन द ग्राउंड। तो हो सकता है कोई पेड़ जहां कोई वाटर बॉडी हो, उसके कॉर्नर पे, किनारे पे होते हैं ना वाटर बॉडीज के, रिवर्स के बैंक्स पे भी बहुत ज्यादा क्या होते हैं, रिवर्स के किनारों पे भी पेड़ होते हैं ना, बाई चांस कोई पेड़ गिर गया होगा और उन्होंने देखा होगा कि अरे इतना बड़ा पेड़ गिर गया, बट इट इज फ्लोटिंग इन द वाटर, फ्लोट कर रहा है पानी में, वो डूब नहीं रहा है। तो वहां से उन लोग को दिमाग में आया हो कि क्यों ना लॉग्स ऑफ वुड्स को आपस में जोड़ के एक ऐसा छोटी सी बोट या राफ्ट बना लिया जाए, सो दैट दे कैन क्रॉस द रिवर। इज इट क्लियर? इसीलिए इसे बोला है द ओल्डेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट इज वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ओल्डेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है बेटा, सबसे ओल्डेस्ट, जैसे लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट है और वाटर ट्रांसपोर्ट है, ये वन वर्ड क्वेश्चन में आ सकता है, विच इज द ओल्डेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो स्टूडेंट, द ओल्डेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट इज एयर वाटर ट्रांसपोर्ट, यही सबसे ओल्डेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ओके, पीपल यूज टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूजिंग लॉग्स, लॉग्स मैंने बता दिया, यही वुड्स को आपस में बांध के दे, और उसके बाद स्मॉल, छोटी छोटी उनको शायद बोट बनाने आ गई ऑन वाटर। सो अर्ली टाइम में ऐसा ही करते थे। अब बट नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट टाइम, अब प्रेजेंट टाइम्स की आप बात करें, नाउ डे पीपल यूज शिप्स हैं, बोट्स हैं, राफ्ट्स हैं, स्टीमर्स हैं, ये सब कौन, ये सारे ऐसी चीजें हैं जो वाटर में चल सकती हैं। ठीक है, यहाँ आपको कार नहीं मिल रहा है, बस नहीं, मैंने कार नहीं बोला, बस नहीं बोला, साइकिल नहीं बोला, मोटरसाइकिल नहीं बोला, बिकॉज दे ऑल व्हीकल्स विच कैन मूव ऑन द लैंड, विच कैन मूव ऑन द लैंड।
सो वो सब क्या थे, लैंड ट्रांसपोर्ट के पार्ट थे। किसके थे, लैंड ट्रांसपोर्ट के। ओके, बोट है, इट इज मेड ऑफ द वुड। शिप्स होती हैं बड़ी बड़ी, वो भी वुड से बनती हैं, बिकॉज वी नो दैट द वुड फ्लोट ऑन द वाटर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।